Good evening, and all online viewers, a very good evening to you all. So here we are going to discuss GS paper 2. This is going to be an introductory lecture wherein I'll be discussing the scope of GS part paper 2, and that too only part of a polity. And hopefully we'll try and complete all the points, and we will also in brief talk about the method and maybe the material that you need to use for GS paper 2. As we have planned these all these seminars for seminars as well as webinars, of course, for 4th of July batch, which is an English medium batch going to be conducted in the evening slot. So keeping that batch in mind, we are going to talk about GS paper 2 and then of course the planning part of the same. So yesterday I think we have conducted one lecture. Am I correct? Some of you might have attended the same, right? Okay, so that was on history, and Pankaj Vatte sir must have interacted with you regarding the same. And those who are attending this webinar today online, please make sure that you go through the webinar which was conducted yesterday. It is available on YouTube page of Unique Academy. So target today is to, in fact, to go into the details of paper 2, and I will briefly introduce paper 2 to you all, and then we will talk about ways to deal with paper 2 so far as mains is concerned and so far as prelims is concerned. And probably you may ask questions at the end of the session when I'll keep it open for you all, right? Yes, so GS paper 2 has got few important components if you look at the syllabus. And here, because we are going to talk about mains syllabus, right? In between, I'll definitely let you know what is required for prelims, or maybe at the end of the discussion. But most of the time of today's lecture, we will be focusing on syllabus for UPSC mains, and that too GS paper 2. While discussing this paper, while discussing this part, I'll be focusing precisely or mainly on the part of Indian polity and governance and social justice. The rest of the part, that is, which belongs to IR, international relations and India's neighborhood and all, will be taken care of by the other faculty, right? So in teaching also, right, in a regular course, I'll be taking the part of Indian polity, governance and social justice, whereas the remaining part would be taken care of by the other faculty, right? So today's discussion would restrict to this part of our syllabus. So as you can see here, we are going to talk about Indian polity and that to Indian constitution. Then we will also talk about governance and some topics which are listed under this particular point in the syllabus. Then we will talk about social justice, though there are no specific points mentioned in the syllabus pertaining to social justice. But then there are, almost half of the syllabus, or you can say complete syllabus, deals with the idea of social justice, as it is quite engaging an idea. Then we will also talk about development processes. So just for our convenience, right, we have this division of topics, or maybe division of syllabus into these topics, you can say, or under these headings. UPSC has not given this sort of a breakup, right? They have directly given the syllabus in point form, but then we have kind of identified it and have put it into these 4 major segments, right? If you must have probably gone through number of such PDFs wherein detailed syllabus is given, but then that detailed syllabus is not UPSC syllabus. That is something which we interpret, right? Like for example, different the old students or those who have prepared, or maybe some faculties at different classes, right? They interpret, and accordingly they'll put those points in the syllabus, thereby expanding the length of the topics that you need to cover under. But I think it's always better to stick to what UPSC has given as a syllabus, and then to understand the details of the syllabus. Furthermore, you can rely on previous year question papers. But that is the best way of identifying the scope of the syllabus, if you want to say the depth of the syllabus or the breadth of the syllabus. So you can identify that,
essentially based on two important ingredients or maybe elements. One, the syllabus as prescribed by UPSC, and second, the previous year question papers, of recent years, being more particular, after 2013, right, till date. You can take those question papers, and thereby you can, you'll get an idea like what is the depth and scope and nature of the syllabus. Right? So we have kept it very simple. Instead of making it too complicated to understand for at least freshers, right, we have kept it very simple as given by UPSC. So let us start with the first point here, the Indian Constitution. So we'll start with this particular topic. Let us see what points are covered under this particular topic. In general, see, if you look at the syllabus, you'll find that the arrangement of the words and topics which I am going to discuss with you is not same, right? The words are absolutely same, as I have copy pasted those words from the syllabus itself, right? Intentionally again, right? Because if I start discussing, then as you will get to know, like the breadth, you will understand. In fact, one particular topic we can keep discussing at length for maybe 4 hours, 5 hours, one particular topic. So depth and the breadth of this topic is really very vast. But then we have to understand, understand the way UPSC looks at the syllabus. Are you getting it? So we will only deal with these topics, and we will understand what is their meaning. So let us start with the first point, and that is Indian Constitution. Right. So what are the points included here? As you can see, historical underpinnings, then evolution, features, amendments, significant provisions, basic, something called as basic structure, then comparison with other countries. So there are these points. Okay, let us go one by one. Let us see what is expected here. I'll just give you a few examples so that you will get to know how one needs to prepare or how one can go about it. When it comes to historical underpinning, what do you mean by this? Can you tell me? What do you mean by historical underpinning? Let us forget about, or let us change this word a little bit just for the sake of convenience. Historical background of Indian Constitution. So what first strikes in your mind? Maybe Government of India Acts, or maybe the acts passed during British Parliament, or maybe British era in India. Am I correct? So you may refer to Charter Acts, or maybe, Government of India Acts and all. Correct? Can we still go back, because it is history and historical background of Indian Constitution, or underpinning? Underpinnings is basically, some important historical events, some important historical contributions in our constitution. So probably from that perspective, from the point of view of values, from the point of view of provisions, from the point of view of its meaning, its interpretations, you can go back very, like, in ancient age also, to basically understand what might have contributed in India's constitution today, right? But then question is, what is the scope then? Can we define the scope of the syllabus? So for that to understand, you'll have to go back to the previous year question papers, like what type of questions have they asked, right? So that is somewhere, it is there somewhere, you'll get to know, like to what extent do I need to prepare for this particular topic. There are people generally read this as if it is only legal history of Indian Constitution. So going back to reading those laws passed by British Parliament while they were ruling India, right? But then that is not enough, right? That is not enough. And again, most importantly, it is also not enough to simply read those things and use those things for your preparation of this topic, because only legal aspect of it is not required. Here probably you may come across a question, that India's freedom struggle has contributed a lot, to create a value base of Indian Constitution, right? And explain. So now this also is a point, or maybe a question, or maybe an aspect under this particular point. Maybe you will read India's freedom struggle in history, but you may not link it with, your polity syllabus. Here, they are intentionally asking you what are historical underpinnings, right? Where you may require to refer to different events which took place during India's freedom struggle and their significant effect, or you can say influence on making of Indian Constitution, right? So it's not just from one particular perspective, but from different perspectives, you'll have to look at this particular point in the syllabus. Like, for example, there is a provision for untouchability in the Constitution. Now, one may ask a question like, oh, untouchability in the Constitution dates back to, ancient age. It was an ancient practice, right? And the Constitution is forbidding the untouchability.
So can we go back and can we search for roots of this particular provision in the constitution? Yes, we can actually go back in the ancient and medieval ages as well as in a modern age to understand from where exactly this particular idea is reflected in the constitution. But so far as GS paper 2 is concerned, one may restrict the preparation of this particular topic to modern Indian history, right? So modern Indian history becomes far more relevant and far more, I would say, significant, right? While you understand the historical underpinnings. So history जब हम लोग देखेंगे, I'll stay bilingual intentionally. Some of you, maybe online people, may not understand English in proper manner. So जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, तो चालू तो कर सकते हैं हम लोग एंशिएंट इंडिया से. तो वो जरूरत है क्या, ये टॉपिक की जरूरत है क्या? तो शायद नहीं है. तो हम लोग कहां तक देखेंगे? तो मॉडर्न इंडिया से आगे आप जो हिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे आपने कल का अगर लेक्चर किया हुआ, जो हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, मॉडर्न इंडिया का पार्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिबर्टी या फिर फ्रीडम हम कहाँ लिंक कर सकते हैं. क्या कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए हुए लॉज में हमारे लिए फ्रीडम की बात की गई थी क्या? तो शायद नहीं की गई. तो फिर फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से मिलता है? पर्सनल लिबर्टी कहाँ से मिलती है? इक्वालिटी कहाँ से आता है? तो आपको ये दिखेगा कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वहां पे इन चीजों को, ये वैल्यूज को प्रैक्टिस किया गया, प्रोफेस किया गया, लोगों में इनकलकेट किया गया, और तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिफ्लेक्ट होता है. सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की जब हम लोग बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये सभी एस्पेक्ट्स को आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, है ना? और तभी मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का एक पार्ट या फिर उसकी स्टडी कंप्लीट हो सकती है. जनरली ये देखा गया है कि लोग या फिर प्रिपरेशन करते वक्त लोग या ये करेंगे कि वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के जो एक्ट्स जो पास किए गए थे उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे. तो मुझे लगता है कि उतना सफिशिएंट नहीं होगा. वो जरूरी डेफिनेटली है. आई डोंट डिनाई द फैक्ट दैट some of those acts passed during British time definitely have got greater significance, or sorry, influence on Indian constitution, right? So far as its framing is concerned and other aspects, but then that is not the only thing. वो सिर्फ वही बात नहीं है, काफी उससे काफी सारी चीजें जो हम लोगों को देखनी चाहिए. So historical underpinnings is one of the important points which I think you need to prepare. Now comes the next point, and that is evolution. Now, how is this evolution different from historical underpinnings? So, in the evolution of Indian Constitution, is it that we will not consider the history, or do you think that it is one and the same? Of course, evolution includes part of history, no doubt. But now here in evolution, we will essentially focus on so historical underpinnings and then evolution. I hope you got the idea, right? So that way you have to look at it. So amendments basically talk about evolution of Indian Constitution, but they're not just amendments. You'll have to also look at different laws passed by Parliament of India. For example, Civil Rights Act. For example, Citizenship Act. These acts are basically giving effect to the constitutional provision, thereby evolving constitution. Samajhte hai? Everybody, right? Amendments, as it is mentioned here. Then see this particular part. Here we will talk about judicial interpretations on different provisions of the constitution. That also contributes into evolution of Indian Constitution. So what do you mean by evolution? Evolution का क्या मतलब होगा? So evolution essentially talks about the progress, you can say, or the way your constitution has survived over the period of time. आपका constitution कैसे survive किया 1950 के बाद आज के डेट तक? उसमें काफी सारे बदलाव हुए रहेंगे, शायद चेंजेस हुए रहेंगे. तो चेंजेस को आप क्या देखोगे? चेंजेस ही तो इवोल्यूशन क्यों बोल रहे हो उसको? सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट के लिए रिलेवेंट बनने की कोशिश करता है, या फिर हम उसको अमेंड करके, उसको इंटरप्रीट करके, उसके ऊपर अलग अलग लॉ बना के उसको आज के डेट में रिलेवेंट बनाते हैं. तो रिलेवेंट बनाने की प्रोसेस, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं. तो इवोल्यूशन में अब अमेंडमेंट क्या मतलब, इसका पूरे के पूरे 100 के 100 अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे हमें? तो नहीं, जरूरत नहीं है.
हाँ, लेकिन रिसेंट और इम्पोर्टेंट वो अमेंडमेंट्स हमें बिल्कुल देखने चाहिए, है ना। And then those amendments only will be helping us to understand the evolution of the constitution. So as I said, basic structure is one of the important contributions of the Supreme Court of India in understanding or in the evolution of the constitution. Basic structure doctrine जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आया, या फिर वैसे काफी सारे केस पर हम लोग बात कर सकते हैं, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया हुआ। बात समझ में आ रही है कुछ, है ना। सो इस तरह से मुझे लग रहा है कि हमें उसको देखना। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या है यहाँ पे, फीचर्स की बात करते हैं। कौन से फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस भी बात कर लेते हैं हम। सो कौन से फीचर्स दिखते हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? लेंथीएस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कोडिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, समझ में आ रही है कुछ बात, ना? उसके साथ साथ ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, देखेंगे हम लोग कितना रिजिड है कितना फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ ऐसे आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा, है ना। तो रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्लेक्सिबल है, या फिर आपने ये देखा रहेगा कि जुडिशरी हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। फेडरल सेटअप है हमारे पास, सिग्निफिकेंट प्रोविजन हो गया, फीचर बोल सकते हो आप चाहो तो, करेक्ट, राइट। तो सिलेबस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। सो देखो कहां से चालू हो रहा है। ये चालू होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ, पहली बात। उसके बाद आप उसका इवोल्यूशन ट्रेस करो, इवोल्यूशन ट्रेस करते करते आप फीचर्स और उसके सिग्निफिकेंट प्रोविजंस को भी देखो, है ना, कैसे परफॉर्म किया आपका कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट तक, है ना, वो भी आप देखो। क्या अमेंडमेंट्स किए क्या आपने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग बनाने के लिए? तो हाँ, हमने कुछ अमेंडमेंट्स भी किए। क्या आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें आइडेंटिफाई की क्या कि शायद उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे कभी? तो हाँ, हमने कुछ ऐसी भी चीजें आइडेंटिफाई की, है ना। ये सब कुछ क्या हुआ, ये सब कुछ हो गया बेसिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप बेसिक्स देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? एंड then this point here it says that you compare Indian constitution with other constitutions of the world. अब other constitutions of the world मतलब क्या हम लोग बाकी कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ने लगेंगे? फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया भाई, सिलेबस का पार्ट है, पूछा है क्वेश्चन उन्होंने ना, इक्वालिटी इंडियन एंड अमेरिकन, या फिर यूके लिखा तो नहीं है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो कोडिफाइड नहीं है ना। तो कौन से लॉज यूके के पढ़ ले हम लोग कि ये समझने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहाँ मैच करते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन या फिर कैनेडियन? नहीं, तो ये जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को कैसे प्रिपेयर करें, मतलब कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज का क्या मतलब है? डू वी रियली नीड टू कीप कंपेयरिंग ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ some other country's constitution? Certainly not. That would be then in that case never ending game, isn't it? You'll keep preparing for years together, बरोबर ना? म्हणजे सो असं काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे का? तसं नाही. सो समथिंग दैट इज इन न्यूज, आज के डेट में न्यूज में क्या है आपको बस वो देखना है और उसके ऊपर आपको प्रिपेयर करने आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो क्यों कोई क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वो न्यूज में है ना, वो एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल एबॉर्शन राइट्स के बारे में अभी बात की जा रही है ना। वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क जजमेंट्स इन यूएस have been turned down now, right, by US federal court and has received a lot of criticism from different corners of the world. And immediately one of the members of the parliament, right, wrote an article, US has gone back, whereas we are stepping forward so far as abortion laws are concerned. So Smriti Irani has written an article. So क्या यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है? फिर हाँ, कंपैरिजन की यहाँ पे चांस है। अब आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें आएगा ना ये बात, है ना। तो इसको आप पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ को इंडिया और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हम लोग यहाँ पे बिल्कुल क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, इसको हमें पढ़ना चाहिए।
राइट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, शायद आपने सुना रहेगा कुछ इस तरह का चीज, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ड्यू प्रोसेस है तो वो, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, और अमेरिकन है तो वो, ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कोई ऐसा जजमेंट है जो रिसेंटली न्यूज में है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि इंडियन और अमेरिकन जो दो, जरूरी नहीं है सिर्फ अमेरिकन हो, ठीक है ना, हो सकता है कल को ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको पूछा जाए, हो सकता है आपको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पूछा जाए, है ना, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। तो आपको देखना कैसे है इसको, आपको ये देखना है कि आज के डेट में न्यूज में क्या है, ऐसी कौन सी चीज है न्यूज में जो इंडियन और फॉरेन जो अदर कंट्रीज है ना, इनके कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन आपको देखना जरूरी पड़ेगा, या आप न्यूज से इसको डेसिफर कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो ना, सोचो सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्या इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर प्रिपरेशन के लिए हमने 10-15 साल का टाइम निकालना चाहिए, फिर नहीं, तब तक तो एज बार हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो इशू वो नहीं है, आपको प्रिपरेशन के लिए वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा जब आप एग्जाम को देखते हो, है ना। अदरवाइज स्कोप सिलेबस का बहुत वाइड है, बात समझिए कुछ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सी है ना, उसको आप करंट समझ लो, करंट इवेंट्स, कॉम्पिटिटिव समझो ही नहीं, है ना, करंट एग्जामिनेशन ही है, आप ऐसे समझ लो चाहो तो बेटर समझोगे एग्जाम को, समझिए ना बात कुछ। नहीं तो फिर स्कॉलर्स तो है ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, समझो सेक्युलरिज्म के ऊपर पूछे वो, तो आपको बहुत सारे स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो सेक्युलरिज्म के ऊपर शायद बुक्स लिख देंगे, है ना। यूपीएससी उस तरह से पूछेगा नहीं, यूपीएससी बहुत ही करंट वाला पार्ट जो आज के डेट में एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है, वो आपको शायद पूछे। हो सकता है जैसे एग्जाम्पल सो एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन एक सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात की जाती है, तो इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट पहले ही हो चुका है, हो सकता है लेकिन यूपीएससी वापस वही पूछे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, यू नो। क्यों? क्योंकि अभी अभी फिलहाल हिजाब वाला इशू इज गोइंग ऑन, एंड कर्नाटका हाई कोर्ट हेल्ड दैट हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, है ना। हो सकता है यूपीएससी ये चीज के ऊपर फोकस करे और आपको 10 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछ ले, बात समझ में आ रही है कुछ। तो इसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपने कहा कहीं पढ़ा क्या है, स्पेशल सिग्निफिकेंट प्रोविजन है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं, तो नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंट प्रोविजन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते वक्त एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को उसका इजाद किया या फिर उसको तैयार किया, तो अब हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट बनता है। अब बात समझ में आ रही है कुछ, है ना। तो जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं ना, तो हम सिलेबस को कैसे देखते हैं, उसका क्या स्कोप है और कैसे देखना चाहिए, ठीक, मुझे लगता है कि ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे। वैसे भी हमें सिर्फ उसका स्कोप देखना है, मैं आपको कोई चीज पढ़ा नहीं रहा आज, ठीक है ना, मैं बस बता रहा हूँ कि वो किस तरह से देखना है उसको। नेक्स्ट इज यूनियन एंड स्टेट। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब यूनियन का मतलब क्या हुआ। आप चलिए मान लीजिए सेंटर, फिलहाल के लिए टेक्निकली सही नहीं है सेंटर और यूनियन दोनों एक जैसे, एक वर्ड नहीं है, अलग अलग मीनिंग है उसका। तो यहाँ पे सेंटर, स्टेट समझता है आपको, स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, आजकल तो न्यूज में पढ़ ही रहे होगे आप, है? तो महाराष्ट्र स्टेट जैसे, तो वो स्टेट, और यूनियन मतलब सेंटर समझ लो फिलहाल के लिए। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है वैसे चीफ मिनिस्टर है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे हाई कोर्ट भी है, राइट, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे गवर्नर है ना, देख रहे हो ना आप, जैसे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स है वैसे स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलेंगे आपको, जैसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वैसे यहाँ पे भी मिलेंगे आप, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरिएट है वैसे स्टेट में भी सेक्रेटरिएट है ना, जैसे सेंटर के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ फंक्शंस है, कुछ पावर्स है, वैसे स्टेट के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ पावर्स है, कुछ फंक्शंस है ना। मतलब हमने किया क्या है, हमने बेसिकली दो अलग अलग जुरिस्डिक्शंस क्रिएट किए, दो अलग अलग एरियाज ऑफ एक्टिविटीज क्रिएट किए। एक एरिया में हमने बोला कि यहाँ पे स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट रिलेटेड जो ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज स्टैट्यूटरी, वो इंस्टीट्यूशंस और वो ऑफिशियल्स काम करेंगे। और हमने बोला कुछ नेशनल इश्यूज है, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज है, इनके लिए हमने एक नेशनल गवर्नमेंट बनाया, यूनियन गवर्नमेंट बनाया, ठीक। वो उसको सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के लिए कुछ उसको पावर्स दिए गए, तो वो नेशनल पैन इंडिया इश्यूज को देखेगा।
रीजनल इश्यूज स्टेट देखेगा, है ना। जैसे लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? स्टेट देखता है ना। अब कल को अगर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बोल दे कि नहीं ये यूएस के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी जो हम लोग डिसाइड करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। नहीं, महाराष्ट्र स्टेट थोड़ी ना यूएस के साथ कोई, तो कौन करेगा? इंडिया। तो जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं, या फिर ऐसी ऐसी चीजें जो जो नेशनल सिग्निफिकेंस रखती है, तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक यूनियन गवर्नमेंट, हमने नेशनल गवर्नमेंट तैयार की, राइट। तो ये जो टॉपिक है ना आपके सिलेबस में अभी, ये टॉपिक्स बस उन्हीं चीजों की बात करता है, यूनियन और स्टेट। अब देखिए इनके पास तो एक चीज तो मैंने बताई आपको, इनको पावर्स अलग अलग दिए हुए, फंक्शंस अलग अलग दिए हुए, है ना, उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है ना, ये बात हुई। लेकिन ये काम तो सिर्फ वही लोगों के लिए करता है, वो स्टेट करे या फिर सेंटर करे, है ना। वो काम तो उसी टेरिटरी पे करते हैं, वो सेंटर करे या स्टेट करे। तो ये भी तो हो सकता है कि उनमें कोई क्लैश हो, ये भी तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहे, झगड़ते ही है, झगड़ते ही नहीं झगड़ते, कहीं कहीं बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं होता, है ना, कहीं रोज चल रहा है, देख रहे हो ना आप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपका यहाँ पे सिलेबस क्या डिमांड करता है? देखो, पहली बात तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी किसकी, यूनियन की क्या क्या है और स्टेट्स की क्या क्या है, बात समझी एवरीबडी। उसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, इश्यूज चैलेंजेस। अब क्या इशू है? तो जीएसटी हैज बिकम एन इशू, है ना, आई कि नहीं, जीएसटी इशू। हेवी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो एन इशू। सो सेंटर और स्टेट के बीच में बात चल रही है, तो बात वहां तक रुकी नहीं से फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि क्या जीएसटी काउंसिल जो बोलेगा वो सभी स्टेट्स को मानना जरूरी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन नहीं हो सकता, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक इशू था, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम किसी एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने वाले एजेंसी के पास गए, जिसको आप जुडिशरी बोलते हो। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये समझे हम लोग कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बताया कि रीजनल लेवल पे कुछ पावर्स है, एंटिटीज है, वो अपना अपना काम वो रीजन में देखेंगी। किसने बताया उनको वो काम? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और नेशनल लेवल पे एक ग्रुप ऑफ एजेंसीज है जो अपना काम नेशनल लेवल पे देखेंगी। अच्छा, उनको किसने बताया कि उनका ये काम है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। बात समझ में आ रही है कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, it is provided by the constitution what would be jurisdictional limits of center and state, or maybe union and state governments when it comes to federal structure. So federalism basically क्या है? कुछ नहीं, दो लेयर वाला केक है ना, दोनों भी इक्वली स्वीट, लेकिन अपना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। बात समझे कुछ? एवरीबडी एवरीबडी, टू लेयर्ड केक, ऐसे आप फेडरलिज्म को बोल सकते हो। In fact, it is a term used by scholars to refer to American Federal Compact, जो टू लेयर केक। हम हमारा क्या है देखेंगे बाद में, जब लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है ना। So functions, responsibility, challenges and issues pertaining to federal structure. Next is devolution of powers and finances up to local level. अब देखो, आपको बिल्कुल ये मालूम रहेगा कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज नाम का कुछ एक्सपेरिमेंट किया 1992-93 में, सुना है आपने ऐसे? 73rd and 74th अमेंडमेंट्स। तो हमने क्या तैयार किया? पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, है ना, और फॉर दैट मैटर म्यूनिसिपैलिटीज। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, व्हाट डू दे डू? दे आर नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ स्टेट और सेंटर एट लोकल लेवल। लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, आप जो सेंट्रल लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे, या फिर रीजनल लेवल पे मतलब स्टेट लेवल पे जिस तरह से डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह से, उसी डेमोक्रेसी को, उसी तरह से, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को आप आपके डोर स्टेप पे, मतलब
लोकल लेवल पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। उसका जो एक सिस्टमेटिक आर्किटेक्चर हमने बना दिया, उसी को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल। इसका क्या मतलब? देखो, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना, स्टेट गवर्नमेंट को, कि लॉ एंड ऑर्डर तुम देखोगे, वैसे क्या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसी के लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया क्या? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कि हाँ कुछ बता। हाँ, तो इसीलिए हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट किया और 11th एंड 12th शेड्यूल क्रिएट किया, जिसमें आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज। बात समझ में आ रही है कुछ? जैसे 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बना के दिया कि स्टेट का और सेंटर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वैसे हमने 11th और 12th शेड्यूल बना के म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल एरियाज एंड पंचायत एरियाज, इनके लिए हमने क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, फंक्शंस डिफाइन किए। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, आप ऐसे समझ लो डिवोल्यूशन वर्ड को हैंडिंग ओवर द पावर्स। डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं आप? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है ना। सो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हमने तैयार किया थर्ड टियर इन द गवर्नेंस, तीसरा एक लेयर बना दिया हमने। तो हमने कितने 3 लेयर का केक बनाया हमने, ठीक है। और उसके साथ हम लोग काम करें तो ये 3 लेयर में काफी सारे शायद इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें एक मेजर इशू है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपके पास जब फंड्स नहीं है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तैयार करके तो बिल्कुल रख सकते हो, वो काम ही नहीं करेगी। आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है उसको, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं है, तो कैसे काम कर पाएगी, है ना? सही बात। सो ऐसे पावर और फाइनेंसेस रिलेटेड there are multiple issues pertaining to local self-government agencies. Your syllabus expects you to prepare on this particular point, powers and finances, and then issues arising out of this. बात समझिए कुछ? Everybody, जैसे बहुत सारे स्कीम्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंप्लीमेंट करती है नहीं करती है ना? ये स्कीम्स के लिए पैसा कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। अच्छा, चलिए पैसा ना आए तो क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज अपना गवर्नेंस इफेक्टिवली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्यों फाइनेंस वर्ड यहाँ पे है? उसी का कारण। अच्छा, चलिए अगर हम लोग बात करें ऐसे बहुत सारे स्कीम्स की, ये स्कीम्स कहाँ डिसाइड होते हैं? क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एजेंसीज अपने लिए, अपने एरिया के लिए खुद ही स्कीम डिसाइड करते हैं कि स्कीम कहीं और से तैयार होते हैं? काफी बार सेंटर से तैयार होते हैं। Central machinery or central government takes the decision and frames the plans and schemes, and then will ask the state as well as local government agencies to implement the same. तो पावर तो दिया ही नहीं हमने। डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए ना। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ये, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का और डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग कहाँ होता है? वहां जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी एक विलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ बैठे हुए? उसका इमीडिएट रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? उसके पंचायत में है। समझ में आ रही है कुछ बात? एवरीबॉडी। अब पंचायत में बैठा हुआ उसका रिप्रेजेंटेटिव अगर उसके विलेज के प्रायोरिटीज को और उसके विलेज के डेवलपमेंट के प्रायोरिटीज के लिए अगर डिसाइड ही नहीं कर पाए, ना डिसीजन ले पाए, तो फिर वो पंचायत होने का क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? सो ऐसे काफी सारे इस तरह के इश्यूज है जो हम लोग ये पर्टिकुलर पॉइंट में देखेंगे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस एट लोकल लेवल। समझिए बात एवरीबॉडी। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसका क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है? अब चलिए सिंपल करते हैं इसको समझने के लिए, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो आपने शायद ये सुना रहेगा कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ऐसे वर्ड सुने आपने? वेरी गुड। और आपने शायद ये भी सुना रहेगा कि इनको अलग अलग रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात नहीं की कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है इंडिया में, है ना, बात की ना। तो इंडिपेंडेंट मतलब उसके पास उसका अलग एक एग्जिस्टेंस है, उसी को सेपरेशन ऑफ पावर्स बोले। लेकिन चलिए हम पहले ये समझ ले कि ये जरूरी क्यों है।
क्यों ना ये समझ ले जरूरी क्यों है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है। तो समझ लीजिए होता ये है कि एक है चिंटू, ठीक, और दूसरा है पिंटू। दो मिल गया हमें, चिंटू पिंटू। This Pintu has got something with, like, he is not happy with Chintu, and then, tries to kill him, attempts to murder. बिल्कुल मतलब उनमें बिल्कुल एकदम जोर जोर की बहस हो गई, है ना। तो ट्राइड टू किल हिम। अब चिंटू वाज इन डेंजर, was in danger, knowing the fact that Pintu may attempt doing this again one more time, right? Thought of going to police station. कहाँ गए? पुलिस स्टेशन। हम लोग भी तो जाते पुलिस स्टेशन, मतलब जरूरत पड़ने पे, है ना। अब चला गया चिंटू पुलिस स्टेशन में, अंदर जाके बोला कि मुझे रजिस्टर करना है कंप्लेन। किसके अगेंस्ट? पिंटू के अगेंस्ट। कोई बात नहीं, बोला जाओ वहां पे साहब बैठे हुए उनके पास रजिस्टर कराओ। गया वहां पे, देखा तो वहां पे पिंटू बैठा हुआ है। साहब, पुलिस ऑफिसर पिंटू। चलो फिर भी कैसे जाके उसने कंप्लेन रजिस्टर करा ली। अब बोला यार ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई। तो चला गया कोर्ट में अर्जी लगाने, देखो ये जो पिंटू है हैज थ्रेटन मी। कोर्ट ने डेट दे दिया, इस दिन आओ, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल, है ना, बात तुम्हारी सुनी जाएगी, इस दिन आओ। सो चिंटू ने क्या किया, अपने एक लॉयर को लगाया और चला गया कोर्ट में। दे वर वेटिंग देयर फॉर देयर टाइम और टर्न टू कम। When their turn came, right, they were surprised to see that Pintu is sitting as a judge against whom the case is registered. अब आप समझ लो पिंटू क्या क्या कर सकता है फिर। तब तो चिंटू को कोई भी किसी भी तरह का जस्टिस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी, समझी बात कुछ एवरीबॉडी। तो अगर पिंटू हर चीज करेगा तब तो कोई मतलब ही नहीं है बाकी चीजों का। वही आपका एग्जीक्यूटिव ही अगर लेजिस्लेचर है और लेजिस्लेचर ही अगर जुडिशरी है या फिर जुडिशरी ही अगर एग्जीक्यूटिव है, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का ही कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं रहता कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस चीज के लिए? हमने इतना एफर्ट्स लेके उसको लिखा क्यों? इस चीज के लिए कि हम लोग इस बात को फॉलो करें बिल्कुल कि जुडिशरी में, अब जुडिशरी के पास अपना एक डोमेन है जिसमें वो काम करेगा, एग्जीक्यूटिव के पास अपना एक डोमेन है जिसमें वो काम करेगा, और लेजिस्लेचर के पास अपना एक काम है या फिर डोमेन है जिसमें वो काम करेगा। बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, neither judiciary nor legislature or executive can take up each other's functions. You may find that there is overlap, at times there is, but then still you will find that these powers and their jurisdictions have been fairly kept separate. इनके powers, इनके jurisdictions हमने separate करके रखे हुए हैं, इसी को separation of powers बोला जाता है। I hope this is clear to you all, right? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, separation of powers in various organs, dispute redressal mechanism and institutions. So institutions की बात करेंगे। मैंने तो अभी आपको बोल दिया कि judiciary, executive और legislature। चलिए बात करते हैं something called as CAG, something called as election commission. What if the government itself is CAG and looking after elections? Then there is probably no need to take elections. How would election remain free and fair if the sitting party and then members of the government themselves are looking after elections? The elections won't be fair then. Am I correct? Correct. What is CAG doing? CAG investigates into, क्या करता है CAG? Financial audit of government's activities. अगर गवर्नमेंट मतलब जो खर्चा करेगा वही अगर ऑडिट सबमिट करेगा उसका,
तब तो आप समझ लो फिर कभी ऑडिट ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूशंस है जिसके बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको ये आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी उन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बिल्कुल रिमाइंड करूं कि यूपीएससी सेपरेशन ऑफ पावर्स के ये पॉइंट पे लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछती है। समझ में आई बात आपको कुछ? एवरीबडी, एवरीबडी। सो दैट इज इन ब्रीफ अबाउट union and state. We can still go into details of it, but I think that is not a purpose to do. Next we have parliament and state legislature. तो स्टेट लेजिस्लेचर तो मुझे लगता है कि आजकल आप बिल्कुल अच्छे से समझते रहोगे, न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो ना न्यूज़पेपर, है ना। महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेचर वो तो बिल्कुल न्यूज में है आजकल, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसी स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, सभी स्टेट लेजिस्लेचर की बात। जो सीन महाराष्ट्र में अभी आप देख रहे हो, वैसे बाकी स्टेट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से उनमें भी वही चीजें होती है। कर्नाटक में हुआ था इससे पहले, आपको मध्य प्रदेश का तो मालूम रहेगा एकदम, जैसे अभी हुआ है वैसे मध्य प्रदेश में भी हुआ था, ठीक है। गुजरात में हुआ नहीं अभी, नेवर नो, हो सकता है कभी, कभी हो ही सकता है, क्या है उसमें, सब पॉसिबिलिटीज है ना, ऑल आर द पॉसिबिलिटीज। तो उस स्टेट लेजिस्लेचर की हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है, पॉलिटिक्स की नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर की। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पॉलिटी और पॉलिटिक्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, वो उसका ब्लेंड तो है ही, लेकिन हम लोग फिर भी स्टिल वी विल, दिस सिलेबस डजंट एक्सपेक्ट यू टू study politics and then write politics. No, it expects you to study constitution and its dynamism that you see in the current. जैसे अभी आज बात, अभी फिलहाल तो बात है, अभी पूरे महाराष्ट्र को पता चल जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ होता है ना। बाकी कुछ पता चले नहीं पता चले, एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल पता चलेगा, है ना। ये भी पता चलेगा फ्लोर टेस्ट कुछ होता है ना। जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसको भी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पढ़ेगा ही नहीं, सही है कि नहीं। तो आपको उसी चीजों को देखो, स्पीकर शायद आप लोगों ने पढ़ लिया रिसेंटली न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ लिया शायद विप पार्टी का, है ना, आपने पढ़ लिया कोalition गवर्नमेंट का क्या होता है, आपने पढ़ लिया शायद एंटी डिफेक्शन, आपने 10th शेड्यूल पढ़ लिया, है ना, सही बात है ना। आपने शायद एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ सेक्शंस भी पढ़े रहेंगे न्यूज़पेपर में अभी तक, है ना। अपना इंटरेस्ट वही, अपना इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है कि कौन सा पार्टी, कितने एमएलए कहाँ से गए, कहाँ रह रहे वगैरह। That is not a part of our syllabus. Syllabus essentially, see, this is how you need to filter the newspaper so as to understand, what is our interest. बात समझी? क्योंकि बहुत बार ये होता है ना, नोट्स निकालते वक्त आप बिल्कुल मतलब एमएलए एमपी कितने गए, कहाँ नाम क्या है उनके, नोट्स में लिख दोगे, नहीं ये करंट अफेयर्स जरूरत पड़ती है, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। यूपीएससी बहुत ही प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछती है, बहुत ही सटीक, और बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो ना एकदम प्रिसाइज हो, इशू बेस्ड हो। बात समझिए आपको कुछ, है ना। तो उस स्टेट लेजिस्लेचर की बात करनी है हमें, वैसे ही हमें पार्लियामेंट की भी बात करनी है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सो यू कैन सी दैट हियर व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो इसके ऊपर कितनी बात चल रही है अभी न्यूज़पेपर में, है ना, रिलेवेंट आपके लिए। कंडक्ट ऑफ बिजनेस देखो, यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर एंड उनके रिमूवल का नोटिस, उसके बाद उनके पावर्स, है ना, डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी अभी चल रहा है। आपको आई थिंक आपने देखा है, यही चीजें जो हमारे लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस के पॉइंट में शायद इंपॉर्टेंट है। समझी बात कुछ एवरीबडी? और ऐसी बहुत सारी और चीजें, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज आर राइजिंग आउट ऑफ इट। चलिए महाराष्ट्र का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक न्यूज एंकर थे, ठीक है, तो वो कुछ बोल गए अपनी न्यूज बताते बताते, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे शायद, बोल दिया उन्होंने बहुत कुछ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जो है उनके अगेंस्ट। तो उसके ऊपर फिर स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ महाराष्ट्र, लेजिस्लेटिव असेंबली रेज द इशू ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिविलेजेस, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर।
चला गया केस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, है ना। अब ये इशू क्या है, क्या कोई एक न्यूज एंकर या फिर न्यूज रिपोर्टर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज नहीं कर सकता क्या? और उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करना क्या किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिविलेजेस को सच में वॉयलेट करता है क्या? क्या इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस में, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? सिर्फ किसी कोई अगर क्रिटिसाइज करे, कोई अगर क्रिटिसाइज करे, तो अगर वो फॉर्मल क्रिटिसिज्म हो तो फिर ये भी एक इशू बनता है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो इस तरह से पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है बात कुछ? इश्यूज पर्टेनिंग टू प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सी, ये जो दोनों एजेंसीज है ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो एजेंसीज को अगर आप देखोगे तो ये एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो अपना एग्जिस्टेंस खुद अलग रखती है। समझ में आ रही है बात? देखो, एसआर मुंबई वाला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जब फ्लोर टेस्ट की बात होगी ना, तो वो फ्लोर पे होगा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे कोर्ट के पास आप किसी डिस्प्यूट एडजुडिकेशन के लिए जाते हो, है ना, तो वैसे ही कोई पार्टी मेजोरिटी में है या नहीं है, ये गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट तय नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली तय कर सकती है। बात समझे कुछ आपको, है ना? तो ये कुछ इश्यूज है। देखो, मैं आपको बस एग्जांपल देके ना ये बता रहा हूँ कि इसका स्कोप क्या है, मतलब इसमें हमें क्या पढ़ना है। क्या सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ के काम चल जाएगा हमारा? तो वो तो शायद मुझे लगता है कि 2 या 3 या फिर में भी 3-4 पेजेस में आप खत्म कर सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, तो उनके क्या क्या पावर्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितने एजेंसीज है, कौन कौन डिग्निटरीज है सिटिंग इन द पार्लियामेंट, हाउ दे कंडक्ट द बिजनेस, हो गया काम खत्म। बट देन दैट इज नॉट सफिशिएंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज बेसिक्स। ये तो पढ़ना ही है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो बेसिक्स तो पढ़ना ही है। हमें अभी बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि स्पीकर क्या होता है, उसके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सब कुछ, है ना। लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि अब जो डायनामिक एस्पेक्ट आप न्यूज़पेपर में देखते हो, वो आपको बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाएगा। समझ में आ रही है बातें कुछ? एवरीवन, everybody, very good. So that is about parliament and state legislature in brief. एकदम ब्रीफ अगर हम लोग देखेंगे छोटा करके उसको, तो ये चीजें हमें देखनी है। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। किसका किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम लोग, फंक्शनिंग देखेंगे, एग्जीक्यूटिव का देखेंगे, जुडिशरी का देखेंगे, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनका भी देखेंगे। What do you mean by structure and organization and functioning of executives? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कि चीफ मिनिस्टर, उनका काउंसिल, इनका अरेंजमेंट कैसे है, इनके क्या पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट, इनका क्या अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके पावर्स फंक्शंस क्या क्या है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और फंक्शनिंग जो है ना, फंक्शनिंग में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें। जैसे फंक्शनिंग में आप देखोगे कि गवर्नर के पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स है, फंक्शनिंग में आप देखोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स, तो वो कैसे यूज कर पाते हैं और कब और कौन से सर्कमस्टांसेस में, है ना। आप ये देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट जो है, चीफ मिनिस्टर और उनका कैबिनेट जो होता है, इनके पास कुछ पावर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग, है ना। ये कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ठीक, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्या इसमें से कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं क्या इस तरह की चीजों को अरेंज करके? तो हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, ये कैसे कैसे काम करते हैं। मिनिस्ट्री में क्यों अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट का बिजनेस है वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या उसके पीछे कोई कारण है? तो क्या वो एफिशिएंसी इंश्योर करता है क्या in running the government and government apparatus, right? So departments, different departments and ministries of the government of India as well as government of each and every state, or maybe the state level upon one, all those things one needs to understand and one needs to study while studying this particular part, structure, organization and functioning of these executive, judicial branches of the government. करते हैं कहीं?
नक्की सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे, है ना? समझ में आ रही बात? और क्या है नेक्स्ट आगे इसमें? देन रोल इन पॉलिटी, किसका किसका रोल देखना है हमें? प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस। चलो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से काफी लोगों को समझता रहेगा ये। इसका क्या मतलब है? आपको मालूम है कोई प्रेशर ग्रुप? कभी सुना है हमने ऐसे? बिल्कुल आपने सुना हुआ है। हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ, राइट राइट। हाँ, प्रेशर ग्रुप्स एक्सप्रेस द डिमांड ऑफ द पीपल। वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? जैसे फार्मर्स, है ना? देयर वाज a movement organized by them for almost 1.5 years or so against farm laws. So they pressurized government to withdraw the farm laws or to bring in some changes in the same. गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया। अब कहाँ है वो जो फार्मर्स ग्रुप था? वो कहाँ है अब? हो गया, उनका पर्पस खत्म है ना। ठीक है, अब नाउ यू मे सी देम now working with some political party or maybe forming अपना खुद का group or maybe still working as platform for all farmers and their betterment and so on and so forth. So pressure groups basically आपको ऐसे women के लिए मिल जाएंगे, vulnerable sections के लिए मिल जाएंगे, कुछ NGOs आपको दिखेंगे प्रेशर ग्रुप के साथ काम करते हैं। जैसे जाट रिजर्वेशन की बात चल रही तो सभी जाट बिल्कुल रास्ते पे बिल्कुल नहीं है, हमें रिजर्वेशन चाहिए। वो उस वक्त के लिए, वो टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट मैकेनिज्म, गवर्नमेंट मशीनरी से आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना, मतलब प्रेशर ग्रुप। इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, ये काफी हद तक इनफॉर्मल है और स्पॉन्टेनियसली तैयार होते हैं और अपना इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे और अपना काम करेंगे। उसी तरह से आप बिजनेसमैन देख सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट देख सकते हो, इनके भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, है ना? शुगर केन फार्मर से तो उनका प्रेशर ग्रुप है, मार्जिनल लैंड होल्डर से उनका प्रेशर ग्रुप है कि नहीं? शॉपकीपर्स, उनके प्रेशर ग्रुप्स है। देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज organized on their interests, not necessarily there can be religious pressure groups also, pressure groups on the lines of caste, creed, sex, color, race, language, रीजनल प्रेशर ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या रोल प्ले करते हैं पॉलिटी में? देखो पॉलिटी लिखा हुआ है, क्या रोल प्ले करते हैं? एज ही सेड, articulating the interest and demands of people and thereby influencing institutions to yield to their demands, right? Organizing and articulating the demands in a proper manner, systematic manner, और उसको स्टेट के सामने, उसको इंस्टीट्यूशंस के सामने रखने का काम ये प्रेशर ग्रुप्स करते हैं। इनफॉर्मल है, फॉर्मल क्या है? फॉर्मल इलेक्टरल मैकेनिज्म है हमारे पास, जो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी बात करे वहां पे, है ना? और हमारे इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। तो काफी हद तक ऐसे दिखता है कि शायद वो हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं? मतलब काम तो उनका वही है, ठीक है। लेकिन किसी कारण आप ये देखोगे कि डेमोक्रेसीज एक फ्री स्पेस तैयार करती है। डेमोक्रेसी जो है ना, एक फ्री स्पेस तैयार करेंगे, और वो जो फ्री स्पेस है, वो फ्री स्पेस में फ्री पीपल और सिटीजन्स दे विल कम टुगेदर, और वो टुगेदरनेस एक इंस्टीट्यूशनल या फिर फॉर्मल स्टेट लेता है, फॉर्मल नेचर और फॉर्मल टाइप में बन जाता है, और वो फिर आपके फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करने लगते हैं। देखो फार्मर्स कहाँ थे? वो वाले फ्री स्पेस में जो आपके डेमोक्रेसी ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में परमिट किया। सीए के अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट हुआ, वो इंस्टीट्यूशनल प्रोटेस्ट नहीं है ना, वो कहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था? इन पब्लिक डोमेन, है ना? वो कौन है? वो प्रेशर ग्रुप। कल को प्रोबेबली वुमेन रिजर्वेशन के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट होगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेशर ग्रुप बोलेंगे।
वो प्रोटेस्ट कहाँ होगा? पार्लियामेंट के अंदर तो प्रोटेस्ट नहीं होगा, वहां पे तो डिमांड फॉर्मली रेज किया जा सकता है, प्रोटेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजिंग अ मूवमेंट या फिर ये सभी चीजें कहाँ होंगी? ऐसे स्पेस में, ऐसे डेमोक्रेटिक स्पेस में जहां पे पब्लिक डोमेन है। बात समझी कुछ? तो ये पब्लिक डोमेन में लोग एक साथ आके अपने इंटरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करती है, इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आ रही है बातें आपको? एवरीबडी, राइट? सो उसी को बोला जाएगा प्रेशर ग्रुप। अच्छा, इनका रोल क्या है? बिल्कुल इनका रोल है, वो ऐसे वल्नरेबल, हिदरटू निग्लेक्टेड, अंडरडॉग्स, अंडर प्रिविलेज लोगों की बात सामने रखते हैं। समझ में आई बात कुछ? है ना? देयर बाय मेकिंग योर डेमोक्रेसी मोर पार्टिसिपेटिव। लक्षात आलं? आप उसी तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस को भी देख सकते हो। ये क्या होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस? वही एसोसिएशन जैसे एनजीओ है ना, जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, डोनर्स है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सभी कुछ उसमें से कुछ फॉर्मल एसोसिएशंस हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड विद द स्टेट, और कुछ हो सकते हैं इनफॉर्मल जो रिकॉग्नाइज नहीं है ना, रजिस्टर्ड है ना, उनका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है या फिर कोई स्ट्रक्चरल सेटअप है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे सफाई कर्मचारी, उनका एक संगठन है, ऑल इंडिया लेवल संगठन है। तो ये क्या कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? कोई एक फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है तो नहीं, ऐसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक डेफिनेटली आप इसको एक एनजीओ, एक प्रेशर ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस तरह से आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। समझ में आई कुछ बात? एवरीबडी, राइट? So formal and informal associations, and they definitely have an influence on, on policy making, on polity and its implementation. समझी बात? एलजीबीटी की कम्युनिटी है, तो वो अपने हक के लिए बिल्कुल डिमांड करेंगे कि हमारे हक की बात की जाए। ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ये आज तक तो हमारे रिकग्निशन को, हमारे एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे थे, तो पहले फिर हम लोग चले गए कहाँ? कोर्ट में। बोला कि आप इसके बारे में बताओ, क्या हमारा एक इंडिविजुअल सेक्सुअल परसेप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या हम लोग उसको, वो ओरिएंटेशन को एक फॉर्मल ओरिएंटेशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? पहले हमारे पास ये राइट है कि नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर? तो कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल है ना? कोर्ट ने बोला है, तो उसके बाद फिर बात चली, अगर ये राइट है तो अब हमारे बाकी राइट्स के बारे में बात करेंगे, राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम आई करेक्ट? तो वो भी एक फॉर्मल ग्रुप है, या फिर सॉरी इनफॉर्मल ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो प्रेशराइज करेगी स्टेट। बात समझे आपको? रिसेंटली एक केस हुआ केरला में, वन ऑफ द ट्रांसजेंडर हाईली क्वालिफाइड filed a case in a Kerala High Court to get the permission for euthanasia. The reason being, she said that I don't find any reason to leave. The reason, I am qualified, very well qualified. I am qualified still. I have not been given that particular employment just because of my sexual orientation. तो देखो हमें अभी, मतलब ये इस तरह से देखो, कोर्ट में जाके आप क्या कर रहे हो? इंस्टीट्यूशन को प्रेशराइज कर रहे हो, और बिल्कुल यही एक डेमोक्रेटिक फंक्शनल डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। तो आपको आपके सिलेबस में ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस को देखना, जो न्यूज़पेपर में आप देखोगे, जो राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, जो प्रिविलेजेस के लिए बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको सबको? तो वो आपको पार्ट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखना चाहिए। क्लियर? नक्की करते का? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स एंड बॉडीज, यस, हियर अगेन, जैसे अभी हमने बात की कैग की, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस लिया इलेक्शन कमीशन का, तो कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को?
है ना, क्या पावर्स है उनके, क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उनकी, है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन है कि वो अपना इलेक्शंस फ्रीली और फेयरली कंडक्ट करे, है ना। इसके लिए फिर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने डिजाइन किया, बोला कि ये इलेक्शन कमीशन विल इंप्लीमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमने देखा कि कितना फेयरली और कितना फ्रीली और कितना ट्रांसपेरेंटली रिसेंटली इलेक्शन हुए इंडिया में, आपने देखा रहेगा। जैसे यूपी का इलेक्शन है, जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हुआ, नहीं। तो वो सभी चीज है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और उसके वायलेशन, पावर ऑफ योर इलेक्शन कमीशन एंड इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ठीक है ना। ये चीजों को आपको इसमें पढ़ना। देखो जैसे ही 2019 का इलेक्शन हुआ तो ईवीएम की बात चली, है ना। ईवीएम, उसकी कंट्रोवर्सी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें उस वक्त डिस्कशन में थी। यूपीएससी ने पहला क्वेश्चन पूछ लिया 2019 के मेंस में, पहला क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में ईवीएम कंट्रोवर्सी के ऊपर, और ये पूछा गया कि आप बताओ कैसे इलेक्शन कमीशन लोगों का फेथ और ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करे। अब ये तो आप किसी बुक में जाके पढ़ के नहीं देखोगे, अच्छा लोगों का ट्रस्ट के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या करना चाहिए, तो ये शायद आप न्यूज़पेपर में पढ़े, कहीं कुछ सजेशन आएगा किसी आर्टिकल में, कोई स्कॉलर लिखेंगे कुछ, वो 2 पॉइंट्स आप निकाल के आपके नोट्स में लिखना चाहिए। पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कोई एक बुक लेके बैठ के इलेक्शन कमीशन के पावर्स लिख के नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और डिमांड करता है। क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप बताओ, सजेस्ट करो कि क्या मेजर्स लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन ने, ताकि लोगों का फेथ और उनका ट्रस्ट, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें बरकरार है ना। तो तो आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूज़पेपर मिलेंगे, आइडियाज जहाँ पे शेयर होती है, आइडियाज जहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है, तो वहां पे आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है कुछ? So powers, functions and responsibilities of such constitutional bodies, right? Then there are some statutory, regulatory and quasi-judicial bodies also. You might have also heard about something called as a National Green Tribunal. ऐकलं असं काही? National Green Tribunal काय करतं बरं? वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल तो डेफिनेटली आपने शायद सुना, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी था रिसेंटली इन न्यूज़, है ना। तो ये क्या होता है वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, क्या करते हैं? क्वाजी जुडिशियल, पार्शियली जुडिशियल बॉडी है ना। तो हमने ये देखा जब वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात चल रही थी बहुत, है ना, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की भी बात चल रही थी जब, तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया उस टाइम में, that the water dispute tribunal has not performed well, whether it is due to their functional paralysis or institutional paralysis. पूछ लिया क्वेश्चन 15 मार्क के इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कुछ, क्योंकि वो न्यूज में था उस वक्त। अब आप वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्या होता है ये सिर्फ आर्टिकल 263 पढ़ के जाके नहीं आपसे होगा, मतलब 262 सॉरी, उतना पढ़ के जाके नहीं होगा ना। मतलब आपको करना क्या है फिर, अभी क्या वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल न्यूज में है क्या, अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यूज में है क्या, तो उसकी कौन सी बातों के ऊपर अभी चर्चा हो रही है न्यूज में, ऐसे कौन सी चीजें आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगी, वो आपको पूछेंगे। आरबीआई, सेबी, इंस्टीट्यूशंस है ना जो रेगुलेटरी काम करती है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेशन का काम करती है नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ एवरीबॉडी? सो ये जो स्कोप है ये पार्ट का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड पोस्ट्स as well as statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, various quasi judicial bodies, various मतलब कितने पढ़ेंगे हम लोग, तो वैसे बहुत सारी है, ईडी है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपको सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको आरबीआई के ऊपर आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है सेबी के ऊपर, आपको क्वेश्चन आ सकता है आईआरडीए के ऊपर, आपको क्वेश्चन आ सकता है, बाकी ऐसे सभी रेगुलेटरी बोर्ड जो हम लोग तैयार करेंगे वो सभी रेगुलेटरी क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऊपर आ सकता है। तब तो दिक्कत हो जाएगी इतने सभी अगर इंस्टीट्यूशंस को हम लोग पढ़ने लगेंगे, है ना। अच्छा पढ़ के भी फायदा नहीं, ये समझना चाहिए कि क्या क्वेश्चन था, किस क्वेश्चन मतलब कौन से एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, न्यूज से मिलेगा। तो मेरा बोलने का सब मतलब the focus here that I'm trying to, or I'm simply trying to fetch your attention to the fact that
reading things from basics would help you definitely to understand what that issue or maybe what that institution is. But then so far as an issue pertaining to that institution is concerned, we'll have to focus on newspaper. And essentially, as I said, competitive exam nahi hai, current hai. Essentially, the current dimensions and dynamism defines the scope of each and every year's paper. समझी बात कुछ? Everyone. जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. It should be in 2020, I think. The question was, the Comptroller and Auditor General of India enjoys very significant position under Constitution and in democracy. How is that significance reflected in terms and conditions of his office? Explain. So फिर people went on to write all the powers and functions and privileges of the office of the CAG. किसी ने ये नहीं लिखा कि वो significance जो है वो कैसे उसके terms conditions में reflect होता है. ये नहीं लिखा किसी ने. Terms conditions लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. बहुत कम है लोग जिनको ये समझा कि क्या पूछा गया. तो क्वेश्चन देखो, अभी अपॉइंटमेंट एंड पावर्स एंड फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन है. वो कैग तो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आप किसी बुक से सिर्फ पढ़ लोगे क्या क्या होता है और उसके पास क्या पावर्स होते हैं, तो शायद आप क्वेश्चन को समझने में और उसके ऊपर कुछ चीजें लिखने में बिल्कुल कैपेबल हो जाओगे, लेकिन जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया क्या आप वो लिख पाओगे? तो वो लिखने के लिए आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सोचना पड़ेगा. आप बुक कौन सा रेफर करते हो एक वक्त और एक लेवल पे मैटर नहीं करता जाता कि सर मैं लक्ष्मीकांत की रेफर करूं क्या, क्योंकि मैं डीडी बसु पढ़ लूं या फिर मैं कुछ कोई और बुक पढ़ लूं कि सर एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाएगा और एनसीईआरटी और क्लास नोट सफिशिएंट. हाँ हो जाएगा, एनसीईआरटी भी सफिशिएंट हो जाएगा. शायद हो सकता है कि लक्ष्मीकांत ही सफिशिएंट हो जाए, है ना, प्रीलिम्स के लिए तो एटलीस्ट. शायद हो सकता है कि कोई डीडी बसु भी सफिशिएंट हो जाए. लेकिन क्या आपने उसको ब्लेंड किया करंट अफेयर्स के साथ? क्या आपने उसको ब्लेंड किया कि आज के डेट में न्यूज क्या पूछा गया था कैग के ऊपर, कौन सा न्यूज था कैग के ऊपर? क्या आपने वो कैग के ऊपर जो कुछ न्यूज़पेपर में आया वो ऐड कर दिया क्या आपके नोट्स में? तो आपका स्कोप कंप्लीट है सिलेबस का, अदरवाइज नहीं है. अदरवाइज आपने जो पीएससी का प्रिपरेशन किया ही नहीं, आपने पॉलिटी का प्रिपरेशन कर लिया, और ये अंतर है. Now GS paper 2 also involves this part, wherein, as I said, development processes अगर आपको याद है, development processes and industry. कौन सी चीजें जिसको हमें फोकस करना है? रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स. अच्छा, ये क्या मतलब इसको कैसे समझे हम लोग? क्या दिया है ये सिलेबस में? कैसे समझे इस पार्ट को, स्कोप को कैसे समझे हम लोग? क्या लग रहा है आपको इसका क्या मीनिंग रहेगा? ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, इंडस्ट्री, isn't it? कौन सी डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम? आर वी टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? आर वी टॉकिंग अबाउट the industrial boards and industrial establishment across India? No, probably not. That would then be a subject matter of paper 3. Here we are not talking about industry from that sense of or that point of. Here we are essentially talking about NGOs, self-help groups, alag-alag different organizations and associations, as we recently referred to pressure groups, right? We are talking about donors, charitable trusts and all. Who are they and why are they so significant to make a position or maybe place in your syllabus? पहले तो ये सोचना चाहिए कि इनका हमारे सिलेबस में आना मतलब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कुछ एजेंसीज रहेंगी तभी आपके सिलेबस में आया हुआ. तो क्या रोल प्ले करते हैं ये? चलिए कुछ थोड़ा देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं. So you all know that there are millions of starving people living in India, isn't it? Food is a luxury, unfortunately.
सही बात है ना? एंड एजुकेशन is next level luxury. To get an education, you must first get a food. So you might have heard about something called as midday meal, मध्याह्न भोजन योजना. देखो ना, हम लोग, हमारे पास स्कीम ऐसा है कि जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम, मतलब स्टेट आपको क्या देगा, खाना प्रोवाइड करेगा. देखो हमारे पास पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करें तो किस लेवल तक पॉवर्टी है, और ये कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा? स्कूल्स में. अरे इसका क्या कारण है? स्कूल में क्यों? घर पे पहुंचा दो भाई. क्यों ना पंचायत में हम लोग खाना पका ले और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो जो पुअर लोग हैं, काम बन जाएगा उसमें. लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी है कि हमारा बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ाना ही नहीं पढ़ाना लोगों को. लेकिन जब इस तरह की पॉवर्टी की हम लोग बात करें तो पढ़ाई तो लग्जरी है. फिर पहले तो ये सोचा जाएगा कि खाना मिल जाए. तो खाना, यहाँ पे मिड डे मील स्कीम बिकम्स एन अट्रैक्शन to ensure retention of students in educational institutions. लेकिन आप देखो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जा रही है. न्यूट्रिशन प्लस एजुकेशन. एजुकेशन इज बेसिकली वैल्यू विच इट्स नॉट ग्रोथ की. यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की नहीं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. तो शायद आपने कुछ ऐसे सुना रहेगा कि अक्षय पात्रा नाम का कोई एक एनजीओ है. हैव यू हर्ड अबाउट अक्षय पात्रा? नावच त्याचं एनजीओचं किती सुंदर आहे ना, अक्षय. ज्याचा क्षय होत नाही असं ते पात्र. See how interesting it is, isn't it? Akshay Patra, an NGO. You know what it is doing? It is catering the requirement of these school-going students or children, you know, by running midday meal scheme, which is basically an initiative of state. बहुत सारे इंडिया में उनके सेंटर्स हैं, और अपना जहां सेंटर है उनका, उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में, और कभी कभी 50 किलोमीटर के रेडियस में, वो हर रोज दोपहर का खाना पहुंचाते हैं स्कूल्स में, जितने भी स्कूल्स आएंगे ना. अब मुझे एक बात बताइए, स्कीम किसने तैयार किया था? स्टेट ने. गवर्नमेंट का काम. तो एग्जीक्यूशन भी तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए था. स्कूल में कुछ कुछ स्कूल्स डेफिनेटली है जहां पे आपको दिखेगा कि स्कूल में ही यहाँ पे वहां पे वो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है ना. यस और नो? यहाँ पे एक एनजीओ सामने आता जिसने बोला कि जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, अल्ट्रुइस्टिक पर्पस से काम करेंगे, है ना. सेल्फ इंटरेस्ट का मोटिव नहीं है इसमें, अल्ट्रुइज्म है. अल्ट्रुइस्टिक पर्पस से काम करेंगे और हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे खाना. तो देखो एनजीओ आप कंट्रीब्यूट कर रहा है ना डेवलपमेंट के प्रोसेस में, कर रहा है कि नहीं कर रहा. बहुत सारे ऐसे एनजीओ है यहाँ, ये तो आपको मैंने एकदम एग्जांपल दे दिया. बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो किसी वल्नरेबल के, किसी डाउन ट्रोडन के, किसी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के राइट्स के लिए खुद ही अर्जी लगा देंगे कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, और बोलेंगे कि इनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं. खुद के नहीं, किसी और के. ये सिटीजन है इंडिया के, दे आर फेलो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और वो फिर काम कराएंगे कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आएंगे, है ना. बात समझ में आ रही है आपको? तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव पैरामीटर्स को ध्यान में रखता है. सो ये जो ऑर्गन्स है ना, जैसे चलिए, सॉरी एजेंसीज नॉट ऑर्गन्स, जैसे चलिए बात करते थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप की और भी. सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिज्जत पापड़ सुने हो आप? सुना? क्या खाया भी रहेगा आपने? नहीं, है ना. क्या था लिज्जत पापड़? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था. अब वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ही उसी लेवल पे चालू होता है. क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प, यहाँ पे लोग एक साथ आके खुद के इकोनॉमिक वेलबीइंग के लिए काम करते हैं. छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं. कभी वो ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड अगर काम करे तो बड़े भी बन जाते हैं, जैसे लिज्जत पापड़ का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. और ये क्या करेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. दे एक्टिवली इन्वॉल्व नॉट एन इंडिविजुअल बट एज अ ग्रुप into economic activities, and thereby mobilize resources, thereby take credit from bank, right, invest it into productive activities, right, and support their family income along with agriculture.
सो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे ग्रामीण बैंक अगर आपने किसी ने सुना रहेगा इससे पहले, जिसको नोबेल मिला इकोनॉमिक्स में, सॉरी पीस का, किस चीज के लिए? बिकॉज इट हैड अ वेरी, यू कैन से, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे डोनर्स, चलिए डोनर्स या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मेरे ख्याल से शायद आप बिल्कुल जानते रहोगे, बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट हम लोग बिल्कुल देखते हैं, है ना। डोनर्स, जैसे टाटा डोनेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ सम और मनी फॉर ड्यूरिंग कोरोना टाइम, right? And there are plenty of donors who will find that they keep donating money for number of organizations, and thereby these organizations start or keep working, you know, in public domain for development process. So कौन सी इंडस्ट्री, देखो यही इंडस्ट्री है, ये जो है ना, यही इंडस्ट्री के पार्ट है। बात समझ में आ रही है कुछ? डेवलपमेंट इंडस्ट्री मतलब हम लोग किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम लोग किसी एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग इस तरह की एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे पब्लिक डोमेन में जो अदरवाइज स्टेट का काम था, जो अदरवाइज गवर्नमेंट का काम था, वो काम अब लोग एक साथ आके इनफॉर्मली ही सही एक साथ रह के उस काम को अंजाम दे रहे हैं। लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट तो कर ही रहा है लोगों के लिए काम, लोग अपना एक ग्रुप बना के, अपना एक इंस्टीट्यूशन बना के, या फिर कुछ हद तक कुछ लोग इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली यही काम करते हैं। उन सब लोगों को एक साथ मिला के, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ मिला के हम लोग उनको नाम देते हैं, जिसको बोला जाता है सिविल सोसाइटी। और वो सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिवली। समझ में आ रही कुछ बात, राइट? वो सिविल सोसाइटी को हमें यहाँ पे पढ़ना, तो उनका क्या रोल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल FCRA एक्ट, शायद आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो एनजीओ के लिए आता है बाहर से, गवर्नमेंट ने बोला हम लोग उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। अगर बाहर से कोई भी फंडिंग किसी भी एनजीओ के लिए आए, तो वो दिल्ली बेस्ड एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, वहीं पे वो उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, किसी और ब्रांच में, किसी और बैंक में वो अकाउंट नहीं होना चाहिए। कुछ तो स्टेट कर रहा है, मतलब इसका ये इशू हुआ कि शायद एनजीओ के काम करने के तरीके में भी कुछ गड़बड़ शायद हो सकता है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें सभी इन एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, देखना है ही, जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। ये तो बात की मैंने अभी, वल्नरेबल सेक्शंस। किसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग वल्नरेबल सेक्शंस में? चिल्ड्रन, है ना, सोशली वल्नरेबल। जैसे हमने उसको अब कैटेगरीज बनाए उसके, इकोनॉमिकली वल्नरेबल, पुअर, राइट, साइकोलॉजिकली वल्नरेबल, है ना, है कि नहीं है? कुछ लोग बिल्कुल है। उसके साथ साथ पॉलिटिकली वल्नरेबल भी आपको दिखेंगे उसके, है ना, सही है कि नहीं? So there are different ways through which an individual or a community becomes vulnerable, and all such vulnerables would be taken care of, women for that matter, transgenders for that matter, minority religious communities for that matter, minority linguistic communities for that matter. So all these are basically vulnerable sections of society. That vulnerability may arise out of economic, political, social, psychological, physiological factors. There can be different factors, historical also, cultural also, religious also. There can be different factors contributing into vulnerability, but once you identify a particular group as a vulnerable group, then you will come to this part of your syllabus, which says that what are the welfare schemes that government is running for vulnerable sections. And PDS, for example, public distribution system. किसको मिलता है वहां पे अनाज? जो हर साल जिनका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, सिर्फ उनको अनाज मिलता है वहां से, नहीं ना, एग्जैक्टली उल्टा। मतलब जो लोग
those who cannot even afford to purchase those food grains from market, they are supplied the food grains at subsidized rate, through a scheme called as public distribution system. Am I correct? तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है, एक वल्नरेबल सेक्शन है, पॉवर्टी ग्राउंड ले लिया हमने, उसके बेसिस पे हमने बोला कि कुछ स्कीम बनाए, वेलफेयर स्कीम बनाए, रिजर्वेशन वेलफेयर स्कीम, ऐसे काफी सारे लॉज आप देखोगे जो स्कीम से वल्नरेबल सेक्शन को टारगेट किए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंटी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये क्या क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि कोई एक सेक्शन है सोसाइटी जिसको लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वही वो वल्नरेबल सेक्शन है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, राइट? लॉज एंड मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस and bodies for the protection and betterment of vulnerable sections. National Women's Commission, National Commission for SCs, National Commission for STs, National Commission for Linguistic Minorities, for Religious Minorities. Am I correct? National Human Rights Commission, States Human Rights Commission, है ना? उसके साथ साथ आपके पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी तो है ही। बात समझ में आई? So institution or bodies for the protection and betterment of these vulnerable sections. You will have to look at them. You will have to see how do they function. सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, यूपीएससी ने बोल दिया कि क्वेश्चन पूछ लिया that National Women Commission is a sort of toothless tiger. मतलब बस बना दिया हमने, काम तो कुछ नहीं कर रहा। So UPSC will find that they ask questions on almost every single point that is there in the syllabus. ये बहुत गलत परसेप्शन बना दिया लोगों ने कि अरे वो कुछ भी पूछ लेते, नहीं, वो कुछ भी तो सिलेबस नहीं देते ना। फिर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ रियलिटी क्या है, आप क्या सुनते हो, मिथ्स क्या क्या है और रियलिटीज क्या क्या है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा यूपीएससी के पेपर में जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स कहीं से पूछ ले उन्होंने, जिसका ना कभी सिलेबस में जिक्र था, ना कहीं न्यूज़पेपर में था, ना किसी को लगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। वो आपके एग्जाम को अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं बनाते, वो उसको और ज्यादा रिलेवेंट बनाते अगर आप क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर को पढ़ो रेगुलरली। तो समझ में आ रही है बात? तो सिलेबस दिया ना, सिलेबस को स्टिक करेंगे हम। हाँ, इतना दिया हुआ, इतना पढ़ेंगे और इसका न्यूज़पेपर में देखेंगे कोई रिलेवेंट चीज है। समझी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल एबॉर्शन लॉ के ऊपर अभी बात चल रही है ना, सरोगेसी लॉ के ऊपर बात चल रही है, मेंटल इलनेस के और मेंटल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर बात चल रही है। अगर आप करंट में देखोगे अभी, तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर बात चल रही है, इसका मतलब किसी एक वल्नरेबल सेक्शन के लिए पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है ना, तो आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन आ सकता है। सरोगेट मदर्स वल्नरेबल है, तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर हो सकता है कि आपको न्यूज़पेपर में कुछ मिले, तो आपको उसके पॉइंट्स बिल्कुल नोट करके रखने चाहिए। करते का तुम्हारा कहीं एबॉर्शन फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, whose right it is to conceive a baby and to whether to give birth or not to give the birth? Of course it is women's right, right? Do you think that but then women in India can exercise it independent of as a matter of their choice, independent of social pressure and social aspects? Certainly not. So in such situation women remains vulnerable in that social setup. समझ में आई बात? तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, हम लोग डिबेट देख सकते हैं, वो वाली चीजें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। करता है पॉइंट्स पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन का एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। वैसे भी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास आई हुई है ना, 2019 बीइंग मोर पर्टिकुलर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस हद तक आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर को रिवॉल्यूशनराइज कर सकती है? आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हेल्थ सेक्टर का तो हमने रिसेंटली देख लिया परफॉर्मेंस कितना अच्छा है 2-2.5 साल में पिछले। तो अब हमें क्या करना चाहिए हेल्थ को और हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए? यूजीसी हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी, expert member committee to look into the matter if we can allow or permit and ask foreign universities
to open their base here in India. इसके ऊपर बात चल रही है, समझ में आ रही है कुछ चीजें? वो सब कुछ हेल्थ और एजुकेशन में आएगा। इसी तरह से पॉवर्टी एंड हंगर भी है। आपको बिल्कुल लगेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये तो पॉवर्टी और हंगर आपको पेपर 1 में भी एक जगह पे मिल जाएगा, है ना? आपको पेपर 3 में भी लगेगा अच्छा ये तो पेपर 3 का पार्ट है, तो पेपर 2 में क्या पढ़ेंगे, पेपर 1 में क्या पढ़ेंगे और पेपर 3 में क्या पढ़ेंगे? देखो पढ़ना तो आपको वही है, पॉवर्टी के डेफिनेशन थोड़ी ना बदलेंगे, उसका डायमेंशन बदलेगा। जो आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा, जो पेपर 3 में पूछा जाएगा, उसका थोड़ा सा चेंज होगा। अदरवाइज देखा जाए तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर फॉलो करोगे आप, तो आप एक ही टाइप का मटेरियल सभी क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। सो पॉवर्टी और हंगर आपको पेपर 2 में इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे ये सोशल जस्टिस राइट्स बेस्ड अप्रोच से पॉवर्टी और हंगर को देखता है। पॉवर्टी हंगर आप पेपर 3 में इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे इंक्लूजन एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट और गवर्नमेंट बजटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में आप पॉवर्टी और हंगर को देख सकते हो। देखो मैं रिजिड नहीं बना रहा हूँ चीजों को, लेकिन आपको कैसे देखना है अगर आप इस तरह से देखो, जो भी आप न्यूज़पेपर में पॉवर्टी और हंगर के ऊपर पढ़ोगे, अगर इस तरह से आप तीनों पेपर के लिए अलग अलग तरीके से देख सकते हो। पॉवर्टी एंड हंगर एज अ सोशल फेनोमेनन एंड एन इशू ऑफ इंडियन सोसाइटी आप पेपर 1 में पढ़ोगे, और एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस आप पेपर 1 में देखोगे। तो इन चीजों को आप कैसे पढ़ते हो और आप तीनों पेपर में किस तरह से लिखोगे, इसको ये डिपेंड करता है कि क्या आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से देखा हुआ है कि नहीं देखा। यही टॉपिक है, एक ही टॉपिक को प्रिपेयर करना है तीनों पेपर्स के लिए। शायद हो सकता है जीएस के लिए भी, शायद हो सकता है ऑप्शनल के लिए। डिफिकल्टी नहीं है, इनफैक्ट ये आसान है, इनफैक्ट ज्यादा 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 कंफर्टेबल है अगर आप चीजों को कंपाइल कर पाओ एक जगह पे। करता है सो social sector services and issues pertaining to development and management of health, education, human resource, poverty, and hunger in India. Then we have something called as governance, जिसमें देखिए बात करेंगे हम लोग किस चीज के ऊपर, important aspects of transparency. Transparency is very important aspect of democratic governance. Yeah. By the people, for the people, and of the people. बराबर ना? सो ट्रांसपेरेंसी क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि वो लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों का गवर्नेंस, तो उसमें लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि ऑन बिहाफ ऑफ देम हाउ द गवर्नेंस इज बीइंग एक्चुअली कैरिड आउट। सेम अकाउंटेबिलिटी, यू आर आंसरेबल टू पीपल। कहाँ पे? ऑन फ्लोर्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज। जैसे आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग पार्लियामेंट की बात सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन आवर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है कुछ? राइट। और वो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको जवाब देना है। किसको जवाब देना है? जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिनके पास गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको, दे आर आंसरेबल टू पीपल। समझ में आ रही बात कुछ? राइट। सो अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स चार्टर, ये क्या चीज है? आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज, तुम्ही बघितलं असणार, आपने डेफिनेटली देखा रहेगा इसको। सिटीजन चार्टर क्या है? जैसे आप किसी एक गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ तो वहां पे बाहर एक ब्लू कलर का बोर्ड होता है जहां पे लिखा रहेगा कि ये ऑफिस क्या क्या काम करता है ना? ये सभी चीजें जो ये सर्विसेज ये जो ऑफिस प्रोवाइड करेगा, ये सर्विसेज के लिए कितना टाइम लेगा, ये ऑफिस कौन ऑफिसर्स है जो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कितनी फीस होगी, है ना? अगर आपको ये डिसाइडेड डेज में, ये टाइम पीरियड में अगर ये सर्विस नहीं मिले तो आपका जो ग्रीवेंस है उसके रिड्रेसल के लिए आपको किसके पास जाना? ये सभी चीजें आप देखोगे कि गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में बाहर लगी रहेंगी। किस चीज के लिए? दिस इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। आपको बिल्कुल मालूम है, बाहर ही आपने पढ़ लिया कि भाई ये एक सर्टिफिकेट मुझे निकालना है, ये ऑफिस ये सर्टिफिकेट का सर्विस बिल्कुल प्रोवाइड करता है। समझ लीजिए क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट, आपको नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट ये ऑफिस में मुझे मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ। इसका फीस है लिखा हुआ ₹100 और इसको टाइम दिया गया कि 5 दिन में ये मिल जाएगा।
तो आप तो क्लियर है, यहाँ पे दिखा आपको कितना फीस है, आप चले गए अंदर ऑफिस में, ये बोला गया अच्छा ठीक है बिल्कुल मिल जाएगा आपको, 15 दिन के बाद आना, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर पाओगे इमीडिएटली, अरे बाहर तो 5 दिन लिखा हुआ है, कितना दिन, 5 लिखा हुआ है ना, आप ही ने तो बताया 5 दिन में ट्रांसपेरेंसी, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, आप 15 कहाँ से बोल रहे, तो नहीं नहीं अच्छा ठीक है 5 दिन में मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं, है ना, 500 रुपीज में हो जाएगा काम 5 दिन में। आपने बोला अरे 100 रुपया फीस है 5 दिन के लिए, लिखा है ना, यही ट्रांसपेरेंसी का डेफिनेशन है। सो सिटीजन चार्टर क्या कर रहा है, गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाता है, गवर्नेंस को प्रो पीपल और पीपल सेंट्रिक बनाता है। बात समझ में आ रही है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अकाउंटेबल रखता है। आपका फेथ इंस्टीट्यूशंस में, जो आपका फेथ है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा आपका ये सिटीजन चार्टर, करते कहीं, नक्की करते का। So you'll find that basically it is nothing but a practice for a practice, or these are essential ingredients you can say of something called as good governance. Good governance के ingredients है transparency and accountability, and citizen charter is one of the ways to attain the good governance. समझी बात। वैसे ही ई गवर्नेंस, applications, models, success, limitations and potential, institutional and other measures, and role of civil service in democracy. अगर हम लोग पूरे सिलेबस को देखिए, ई गवर्नेंस का क्या मतलब है, ये क्या करता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। आप पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए जाके ऑफिस में लाइन लगाते थे, है ना, और बिल्कुल परेशान हो जाते थे यार इनका लंच टाइम कब खत्म हो, नहीं है ना, आप क्या कर सकते हो, वो लंच टाइम रहे या स्लीप टाइम रहे, रात को 12 बजे बैठ के भी आप बिल्कुल ई गवर्नेंस, काम तो आप वही कर रहे हो, देखो है ना, काम आप वही कर रहे हो क्या रहा है सिर्फ यहाँ पे, कन्वीनियंस, स्विफ्टनेस, सेविंग ऑफ टाइम, एनर्जी, am I correct everybody, right? So e-governance brought in, yes, swiftness in governance, speedy governance हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हुआ, वहां पे जाके आपने पैसा तो दे दिया, बिल भर दिया, तो बोला नहीं रिसिट का बुक है ना खत्म हो गया, अभी कल आना रिसिट लेने के लिए, तब तो आपको बिल्कुल कल तक, जब तक रिसिट हाथ में नहीं आता तब तक आपके दिमाग में अरे यार देगा भी कि नहीं देगा रिसिट, पैसा तो ले लिया इसने, और यहाँ पे क्लिक कर दो रिसिट आ गई। ट्रांसपेरेंसी, सिंपल एग्जांपल्स में इंटेंशनली दे रहा हूं आपको बस ये समझने के लिए और समझाने के लिए कि ई गवर्नेंस का क्या मतलब है। अब इसके काफी मॉडल्स, मतलब मॉडल्स और उसके सक्सेस, उसके लिमिटेशंस भी है, उसका पोटेंशियल भी है, ये हम लोग इसके लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, तो वो बाद में देख लेंगे हम लोग लेक्चर्स में। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, और एक बात आपने बिल्कुल देखा रहेगा कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है, अभी भी उनके पास ना उनके बैंक अकाउंट का बुक रहेगा एक, और वो चाहेंगे आपसे कि बिल्कुल जाके उसको एंट्री करा के लाओ तुम, है ना, आप बिल्कुल उनको बता सकते हो देखो यार मोबाइल पे ये देखो आपका नाम है और ये आपका अकाउंट है, इसमें इतना अमाउंट दिखा रहा है, बोलेंगे नहीं यहाँ पे बुक में दिखना चाहिए, बुक में तो नहीं दिख रहा, है ना, तो आप जाके, तो अब देखो कैसे कैसे फाइनेंशियल सेक्टर भी या फिर बैंकिंग सेक्टर भी चेंज हुआ। पहले क्या करते थे हम लोग, कैश विड्रॉल के लिए जाके रुक रहे वहां पे लाइन में, बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 2 डिकेड्स पहले की बात कर रहा हूँ, है ना, वहां से कैश विड्रॉ करके लाओगे बैग में भर के घर पे, नहीं लॉकर में रखेंगे, फिर क्यों, कल को जाके पूरे महीने का राशन लेके आना है। अब पेटीएम, अच्छा पेटीएम नहीं, अमेजॉन वॉलेट, क्या चाहिए, अमेजॉन पे क्लिक कर दिया, घर पे आ गया, जाने की कई जरूरत। आप इन चीजों को कैसे देखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ई गवर्नेंस ने क्या किया, सेम प्रोसेसेस ऑफ गवर्नेंस, सेम issues, same matters of governance, you know, e-governance have simply changed the way we used to organize our collective activity called as governance. जिसको पहले हम लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे वो चेंज हो गए, है ना, तो ये देखो मैंने आपको डायरेक्ट जंप करके बताया, वहां से कैश विड्रॉल करने से लेके पेटीएम तक, इसके बीच में एटीएम भी आके गया,
है ना। तो एटीएम भी तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ही था ना, तो वो चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग ई गवर्नेंस से अब मोबाइल एम गवर्नेंस के ऊपर आ चुके हैं। बात सही है नहीं उसमें? आपने वो कोविन ऐप यूज किया रहेगा, आरोग्य सेतु एंड कोविन। घर बैठे बुक हुआ था कि नहीं हुआ था आपका स्लॉट, जहां पे जाके आपको इंजेक्शन लगाना है? हुआ था ना। आप गवर्नमेंट के साथ घर बैठे, कहीं ना जाके, गवर्नमेंट के साथ तो इंटरेक्ट किया ना आपने, वो एक मोबाइल डिवाइस से। इसी को ई गवर्नेंस बोलते हैं। समझी बात? पासपोर्ट के लिए पहले जाके वहां पे खड़ा रहना पड़ता था लाइन में, फिर कोई आता था इधर उधर से देख के कि आपको पासपोर्ट निकाला है, बोलेगा मैं निकाल के देता हूँ, आई एम हियर टू हेल्प यू, है ना। इतना इतना पैसा तो बिल्कुल हो जाएगा आज के दिन में, आज ही काम हो जाएगा। अब अभी इमीडिएटली ऑनलाइन जाओ, पासपोर्ट अथॉरिटी में बुकिंग करो, स्लॉट बुक करो, अर्जेंट पासपोर्ट भी मिलता है उसके ऊपर। स्लॉट बुक करो, पेमेंट करो, जाओ, पासपोर्ट आ जाए। ट्रांसपेरेंसी। सो ई गवर्नेंस एफिशिएंट, इफेक्टिव, इकोनॉमिक गवर्नेंस की तरफ ओल्ड आइडिया ऑफ गवर्नेंस को लेके जाता है। तो इसीलिए गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ई गवर्नेंस इज जस्ट नथिंग बट अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। बात समझ में आ रही है कुछ? तो हमें ई गवर्नेंस के इसी तरह से कुछ मॉडल, सक्सेस आप समझ लो, लिमिटेशंस, और ये जो चीजें हैं ये भी हमें देखनी है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, एवरी वन ऑफ यू। गुड। एंड ऑफ कोर्स यस, देन the last point is role of civil service in democracy. तो सिविल सर्विस क्या रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में? तो वो एक बैकबोन है, ये वो एक स्केलेटन है जो डेमोक्रेसी को रन करता है ना। तो राइट्स, लोगों के राइट्स, लोगों के प्रिविलेजेस, सर्विस डिलीवरी, ये सभी चीजों को प्रोटेक्ट करना, ये सभी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए एक फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है स्टेट का, जिसको हम लोग सिविल सर्विस बोलते हैं। समझ में आई बात? सो इन ब्रीफ दिस वाज ऑल अबाउट जीएस पेपर 2 एंड इट्स सिलेबस। बीच बीच में मैंने आपको बिल्कुल ये बता दिया कि आपको पढ़ना क्या। तो पढ़ना आपको बिल्कुल वही बुक्स है। मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो। एनसीईआरटी जो है, आप 7th स्टैंडर्ड से लेके या फिर 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ सकते हो। इसमें पर्टिकुलरली अगर आप पढ़ोगे तो 11th स्टैंडर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला एनसीईआरटी जो है, उसको तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही है। समझ में आई बात? 11th स्टैंडर्ड वाला कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो आपको बिल्कुल पढ़ना है। इसके साथ साथ 8 to 12th एनसीईआरटी, इसमें मैंने जैसे बोला 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, इसके साथ साथ फिर कौन से बुक्स पढ़ने? तो देखो, मैं आपको ये बिल्कुल, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन में, और वो इस चीज के लिए भी पढ़ते हैं कि उसमें से कुछ बेसिक चीजें हो जाए। तो बिल्कुल, क्योंकि वो एक जगह पे आपको कंपाइल मटेरियल मिल रहा है, तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। आप डीडी बसु का पार्ट पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है ठीक से और आप ये पढ़ पाओ, तो बिल्कुल ये पढ़ सकते हो। बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत अच्छा बुक है। आप शायद अगर आप चाहो तो सुभाष कश्यप जो है, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उन्होंने लिखा हुआ बुक है अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लिखा हुआ, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कोई एक बुक, ठीक है ना, जो आप बेस बना सकते हो। अब इतने में सफिशिएंट नहीं है चीजें, तो इसको करना क्या है, कोई बुक पढ़ लो आप, उसको करना क्या है, ब्लेंड इट with newspaper. I'm not asking you to draft the notes from newspaper. No, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। आप पहले पढ़ो तो न्यूज़पेपर, पढ़ो, देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके, पीवाईक्यूज लेके, रोज लेके बैठो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, देखो कि क्या आपने कुछ समझ लीजिए, ए टॉपिक पढ़ लिया आपने आपके बुक में से,
ए टॉपिक के ऊपर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए और फिर वही ए टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज मिल रही है क्या आपको, आप बस देख लो। न्यूज़पेपर की न्यूज को आप लिखो नहीं अभी, लेकिन उसको देखो कि ये कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये कोई टॉपिक है, जैसे समझ लीजिए गवर्नर है ना, एंटी डिफेक्शन ही ले लो। तो एंटी डिफेक्शन आपने आपके बुक से पढ़ लिया, अब आपने देखा कि एंटी डिफेक्शन के ऊपर इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, तो आपको क्वेश्चन भी मिल गया, समझ लीजिए। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, आप देखोगे कि क्या अभी न्यूज़पेपर में जो एंटी डिफेक्शन के ऊपर पूछा जा रहा है और जो चीजें दिख रही है, क्या मैं मेरे नोट्स में इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या, या फिर कर सकती हूँ। यहाँ पे आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। सिर्फ बुक पढ़ के, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। जैसे मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव को करंट अगर आप समझोगे तो मुझे लगता है कि आप समझने में, आपको एग्जाम का एटीट्यूड अप्रोच समझने में आसानी है। बात समझ में आ रही है सबको। प्रिपरेशन करते वक्त देखो, पॉलिटी के प्रिपरेशन के लिए, जीएस पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए दो चीजें हैं। एक, आपको बेसिक कंसेप्ट समझना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं समझोगे और आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर से या फिर किसी और चीज से प्रिपरेशन करना चालू करोगे, जैसे लोग करते हैं काफी बार, सर मैंने एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने ना आंसर लिखना चालू किया न्यूज़पेपर के आर्टिकल से। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये ना करें। दिस वे ऑफ haphazard preparation results ultimately into chaos at the end of the day। ये ना करे तो बेटर रहेगा। आप टाइम दो ना खुद को। आप खुद से इतना ज्यादा हैरासिंग वे में एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि मुझे आज तक कभी कुछ लिखा नहीं, आज ही लिखने आना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, है ना। आपको खुद को समझो। ये प्रिपरेशन में हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, है ना, कि आज तक कभी ऐसे नहीं लिखा था सर मैंने, आज ऐसे लिख दिया गुड गवर्नेंस के ऊपर। अब उसमें वही चीजें होंगी जो गवर्नेंस और गुड का कोई लेना देना नहीं होता उसमें। ये नेचुरल है, आप ये समझो, है ना, मतलब इसमें कोई गलती आपकी नहीं है। एग्जाम की डिमांड अलग है ना, एग्जाम की डिमांड अलग है, उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आप पहले खुद को टाइम दो, रेस में अननेसेसरी भागो नहीं, है ना। खुद को टाइम दो, पहले 6 महीना 7 महीना बैठ के बेसिक कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से करो। उसके बाद आप करंट को उसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। एक बार आपने बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप शायद रेयरली आपको जाके बेसिक्स वापस देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट आपको काफी बार खींचेगा बेसिक्स के पास। और करंट में बहुत बार आप देखोगे एंटी डिफेक्शन के ऊपर जो चीजें चल रही है, आपको कोई ना कोई न्यूज़पेपर में एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, वो क्यों आया था, क्या नहीं आया, सब बेसिक्स मिल जाए। लेकिन आपको पहले पता तो चले बेसिक्स से कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली होता किस चीज के लिए। बात समझिए आपको कुछ, तब जाके आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो। समझ में आई बात। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफ कोर्स क्लास नोट्स तो डेफिनेटली रहेंगे यहाँ पे, है ना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। पहले उसको पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। और पढ़ो मत 10 बार मतलब पेज 1 टू पेज लास्ट हो गया एक बार, पेज 1 टू पेज लास्ट 2 बार, ऐसे नहीं। एक चैप्टर लो, उसको 5 बार पढ़ो आज। वो चैप्टर होने के बाद दूसरे चैप्टर को लो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो। आप पढ़ो उसको पहले, इस चीज को समझने के लिए कि क्या है। और मैं चाहता हूं कि इवन रेफरेंस बुक्स भी आपको इसी तरह से पढ़नी चाहिए, जो रिलेवेंट टॉपिक्स है उसमें से उसी चीज को बार बार पढ़ो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं सर मैंने तो वो डीडी बसु पढ़ लिया, 2 बार हो गया मेरा, मुझे समझ में आया, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है फिर आप नए डीडी बसु बन जाओगे। फिर अगर 2 बार में वो लिखा हुआ, जिन्होंने पूरा लाइफ अपना एक बुक लिखने में चला गया उनका, आपको 2 बार में पढ़ के समझ में आता, तो वंडर्स देन। तो इस चीज को समझो कि समझना क्या है और किस हद तक समझना है, और उसको एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करना है ना। सो स्टे पेशेंट विद द बुक्स, दे आर रियल टीचर्स फॉर यू इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। क्वालिटी मटेरियल पढ़ो, अपने खुद के नोट्स निकालो तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट वही अच्छी बात है, खुद नोट्स निकालो, करंट के भी हो, आप रेफर करो बाहर जो नोट्स मिल रहे हैं आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके खुद के भी तो कुछ होने चाहिए, है ना। मैं बना के नोट्स दे दूंगा आपको करंट के, तो मेरे नोट्स हुए ना, आपने क्या किया उसमें, बायट कर लिया उसको, क्वेश्चन आएगा कुछ तीसरा, वो समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पूछा गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ के खुद को प्रोसेसिंग के लिए अलाउ नहीं करते। यू डोंट गिव योरसेल्फ अ चांस एंड टाइम टू प्रोसेस थिंग्स।
more you process, more closer you will be for your success. कळलं का सगळ्यांना? Very good. So that's something which I wanted to share with you all. I hope online students, you also got good insights into what I discussed today, or how you can manage your preparation, right? So thank you so much. We'll stop here for today. Hopefully see you in the regular lectures. Thanks a lot.